Hello everyone. How are you people? Keep commenting on our space. आप बताइए आपका कैसा पढ़ाई चल रहा है? How is your strategy coming along? How is your planning going on? Or you can email us at infokular@gmail.com. Anyways, today's topic is Wernicke's encephalopathy and Korsakoff syndrome. ये दोनों conditions पढ़ेंगे, इसकी symptomatology, pathophysiology समझेंगे हम because it is important on exam point of view. NEET PG में तो questions आते हैं घुमा फिरा के once in a while in alternate years. So this forms a part of the alcohol abuse, also the greater picture of thiamine deficiency. And how are these two related? We'll just read in some time. Let us get started. So why are we starting with thiamine? Because किसी भी पेड़ को उगने के लिए आपको उसकी जड़ मजबूत होनी चाहिए. You should know the roots of the pathology of these two conditions. So thiamine, which is also called as vitamin B1, which is a water soluble vitamin, plays the main role in Wernicke's and Korsakoff. होता क्या है? The main good sources of thiamine is meat or cereals या nuts या beans. ये सब जो है, this will form a good source of thiamine. Now, usually there are malnourished people who have low dietary intake, and also alcohol abusers also have a low dietary intake of thiamine, which is one of the reason for thiamine deficiency in alcohol abusers. आपने देखा होगा, they are supplemented with thiamine. The other reason is thiamine, ये जो हमारे पास molecular structure है, ये thiamine की है, gets converted into thiamine pyrophosphate in our body. और ये TPP आपने सुना होगा biochemistry में, is a part of TCA cycle as well as pentose phosphate shunt. Now this conversion is extremely important क्योंकि clearly ये carbohydrate metabolism में एक important role play करता है. Now what is the monster that is hampering the conversion of thiamine to TPP? And this is where alcohol comes in the picture. So alcohol abusers do not just have low dietary intake of thiamine, but also lead to reduced conversion or defective conversion of thiamine into TPP. Now how this process proceeds हम देखते हैं. Now this is a TCA cycle. इसमें क्या हो रहा है? पायरुवेट जो है वो पीडीएच जो एंजाइम है हम जो देख रहे हैं, पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज, इसके साथ टीपीपी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है एंड डीकार्बोक्सिलेशन करता है. सो फॉर अ टीसीए साइकिल, फॉर पायरुवेट टू एंटर द साइकिल यू नीड टीपीपी. सो इन केस थायमीन डेफिशिएंट है तो टीपीपी रिड्यूस हो जाता है. देन देयर विल बी ब्लॉक्ड एंट्री इनटू द टीसीए साइकिल. Also at the level of alpha ketoglutarate dehydrogenase complex, इसमें भी TPP associated होता है. इस केस में भी decarboxylation होती है, but again thiamine deficiency will lead to defective conversion here from alpha ketoglutarate to succinyl coenzyme A, and pentose phosphate में भी trans ketolase को affect करती है ये process. So eventually the carbohydrate metabolism is hampered. Now what happens after that? कि थायमीन की डिप्लीशन हो जाएगी सोर्स की. नॉर्मली ये किस में होती है? क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में होती है इसकी डेफिशिएंसी, और ऑल्सो सीन इन डायबिटीज. इसके अलावा अल्कोहल अब्यूजर्स में होती है. लेट अस सी हाउ. नाउ व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ थायमीन डेफिशिएंसी इन केस ऑफ अल्कोहल अब्यूजर्स or those who undergo bariatric surgery? Bariatric surgery क्या होती है? You must have heard of that the weight loss is achieved by reducing the size of the stomach. उसको छोटा कर देते हैं या use करते हैं gastric band and we remove a portion of the stomach और re-root कर देते हैं small intestine को. So eventual absorption of the diet is reduced. तो इसमें क्या होता है? In both of these cases what happens is there is defective absorption and metabolism and storage. तो absorption thiamine की हो नहीं रही है हमारे पास, और मेटाबॉलिज्म तो हमने देखा थायमीन टू टीपीपी कन्वर्ट नहीं हो रही है, एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो रही है, स्टोरेज भी नहीं हो रही है. नाउ व्हाट दिस लीड्स टू? डिप्लीटेड थायमीन रिजर्व्स. बॉडी में थायमीन रिजर्व कम होगी तो सबसे पहले कौन सा ऑर्गन डैमेज होगा? किसको इम्पैक्ट ज्यादा होगा? देन इट विल बी ब्रेन. वाई? ब्रेन का एक जनरल माना जाता है कि 110 कैलोरी पर पाउंड पर डे बर्न होती है, और आप किसी दूसरे ऑर्गन्स का देखोगे तो 6 से 10 होती है. मतलब काफी डिफरेंस है. दिस इज 10 folds ऑफ द कैलोरी. मतलब 20% ऑफ कैलोरी पर डे जो है वो हमारी ब्रेन
हो जाती है. So the first organ to be affected will be brain and there will be oxidative damage जिसकी वजह से mitochondrial injury हो जाएगी and mitochondrial injury always ends up leading to pro-apoptotic pathways. तो cell damage होने लग जाएगा, biochemical lesions in CNS हो जाएंगे, neurological related injury हो जाएगी. Now this is the pathway of thymine deficiency leading to CNS lesions and this lesions can further be divided into, हम देखते हैं, first is Wernicke's encephalopathy. ये कब होगा? When the toxication, when the alcohol toxicity is acute, तो Wernicke's encephalopathy कहते हैं. ये क्या होता है? इसकी एरिया इन्वॉल्व क्या होती है? Not related to Wernicke's area, big misnomer. Wernicke's area क्या होती है? स्पीच और इंटरप्रिटेशन के लिए, लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन के लिए एक एरिया होती है Wernicke's, उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है. तो इन्वॉल्व क्या है? एक छोटी सी राउंड बॉडी होती है जिसको हम कहते हैं मेमिलरी बॉडीज. ये पेयर ऑफ स्मॉल राउंड बॉडीज होती है लोकेटेड ऑन द अंडर सर्फेस ऑफ द ब्रेन एज अ पार्ट ऑफ डायंसेफेलॉन एंड ये लिम्बिक सिस्टम को फॉर्म करती है. तो इफ यू लुक इनटू एमआरआई, पेटिकियल हेमोरेजेस इन मेमिलरी बॉडीज आर कॉमन. इसके अलावा मिडलाइन सेरेबेलम भी इन्वॉल्व होती है, थैलेमस, पेरी एक्विडक्टल, ग्रे मैटर, ये सब सारे इन्वॉल्व हो सकते हैं. And they can be seen on MRI or may not be seen on the MRI, but less frequently seen. The typical finding is petechial hemorrhages. कभी-कभी question में आ जाता है in mammillary bodies. Now, triad क्या है Wernicke's encephalopathy की? जो triad है, before that the most important thing is क्योंकि acute condition में ये एक reversible process है. Now the triad is a cow. Cow बोले तो CAO. O से ophthalmoplegia, A से ataxia या gait ataxia and C say confusion, which is global confusion. We'll undertake these categories individually. पहले ophthalmoplegia आते हैं. Ophthalmoplegia ठीक है, हमने कहा Wernicke's में नहीं होती है, mammillary area limbic system को involve करती है, cerebellum thalamus involve करती है. So why is there an ophthalmoplegia? इसकी cause क्या है? इसकी most common ocular symptom क्या है? ये MCQ की क्वेश्चन है, so I will write it. Nystagmus is the most common ocular symptom. Basically इसमें movement disorder होता है और साथ में pupillary changes भी हो सकते हैं या pupillary lesions भी हो सकते हैं. Now what is the improvement with RX? Before we deal with this, we need to know what is the cause. Pupillary causes कब होंगे? जब tegmentum involved होगी. Brainstem tegmentum जो होती है, इसकी इन्वॉल्वमेंट से अगर यहाँ पे ऑक्सीडेटिव इंजरी हो रही है तो पिपुलरी चेंजेस होने लगेंगे. पर मूवमेंट डिसऑर्डर्स का मेन कॉज क्या है? गेज पैल्सी होती है, नर्व पे कंप्रेशन होता है. बट वन ऑफ द थिंग इज लैटरल रेक्टस पैल्सी, जो मोस्ट कॉमन कॉज है इसकी. So lateral rectus palsy is the most common cause. Nystagmus is the most common ocular symptom. The next thing to understand is ataxia. Ataxia क्या होती है? Lack of muscle coordination when a voluntary movement is attempted. तो मैंने वॉक करना चाहा, एक वॉलंटरी मूवमेंट है, मैंने पैर बढ़ाए, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग इन अ स्ट्रेट ऑर्डरली फैशन माय राइट लेग गोज स्लाइटली अनकोऑर्डिनेटेड लेफ्ट. फिर कभी मैं राइट लेफ्ट जिगजैग पैटर्न से जा रही हूँ, मुझे कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो रहा है. दिस इज अटैक्सिया. हियर इन द एग्जांपल स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट गेट अटैक्सिया. तो ये किस लिए होती है? आपको पता है कि इन कोऑर्डिनेशन की जब भी कॉन्सेप्ट आती है, सो द मेन ऑर्गन दैट इज इन्वॉल्व इज सेरेबेलम. एंड इसके अलावा क्या हो सकता है? वेस्टिबुलर रीजन हो सकती है मेडुला की, क्योंकि वेस्टिबुलर रीजन भी कोऑर्डिनेशन को डिक्टेट करती है. सो वेस्टिबुलर रीजन इन मेडुला कुड बी अनदर एरिया व्हिच कैन बी इन्वॉल्व्ड. द थर्ड थिंग इज कंफ्यूजन. कंफ्यूजन या ग्लोबल कंफ्यूजन कहते हैं इसको. ग्लोबल कंफ्यूजन ये क्या होती है? इज इट द रिड्यूस्ड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी या क्या कंफ्यूजन से क्या होता है? इसमें परसेप्शन थोड़ा रिड्यूस हो जाता है और उसको अंडरस्टैंड करने की कॉग्निशन थोड़ी लो हो जाती है, कॉग्निशन कम हो जाती है. बट इंटेलेक्चुअल एबिलिटी पे हम कमेंट नहीं कर रहे. इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इज फाइन, बट इन जनरल कंफ्यूजन होता है ड्यू टू रिड्यूस कॉग्निशन ऑफ थिंग्स एंड दिस इज जनरली ड्यू टू सेरिब्रल डिसफंक्शन इन डिफ्यूज फॉर्म. तो जो सेरिब्रम है हमारा, उसमें डिफ्यूज जगह पे लीजन्स हैं, इसकी वजह से डिफ्यूज सेरिब्रल डिसफंक्शन होती है. That leads to confusion.
Now this was an acute syndrome. Wernicke's का quickly acute होती है, reversible होती है, confusion ophthalmoplegia, gait ataxia at the triad. इसमें देना क्या होता है, पूछते हैं ट्रीटमेंट क्या होता है इसकी, तो ट्रीटमेंट होती है थायमीन की IV डोजेस अबंडेंस में देते हैं और यूजुअली जो सिम्टम्स हो जाती है स्पेसिफिकली ophthalmoplegia हमने देखा था, it immediately almost within few hours it starts to resolve. So ophthalmoplegia is one of the earliest symptoms to resolve on thiamine की medication. Now what is Korsakoff syndrome? Korsakoff syndrome एक chronic condition है, which means सालों साल पी रहे हैं. So this is prolonged ingestion of alcohol. Prolonged alcohol ingestion. It is not like Wernicke's and this becomes irreversible. इरिवर्सिबल है इसके चेंजेस. मेन चेंजेस क्या है, ये भी लिखते हैं कई जगह पे लोग कि दिस इज एन एमनेस्टिक डिसऑर्डर. एमनेस्टिक मतलब मेमोरी लॉस, एमनेस्टिक डिसऑर्डर. तो इसमें किस किस तरह की मेमोरी लॉस होती है या क्या डिफाइंड सिम्टम्स होते हैं इसके. फर्स्ट इज एंटेरोग्रेड एमनीशिया, रेट्रोग्रेड एमनीशिया एंड एमनीशिया फिक्सेशन. एंटेरोग्रेड मतलब फ्यूचर इवेंट्स की मेमोरी नहीं रखना. मैंने अभी कुछ मेरी ऑनसेट ऑफ सिम्टम ऑलरेडी हो गई है, अब मैंने ब्रेकफास्ट किया बट मुझे अब याद नहीं है, मुझसे आप 10 मिनट बाद पूछो बट मुझे याद नहीं है कि मैंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया. सो वंस द सिम्टम इज ऑलरेडी the onset of symptom has already occurred, उसके बाद की मेमोरी फ्यूचर की मेमोरी नहीं होती है. रेट्रोग्रेड एमनीशिया क्या हो गया, पुरानी मेमोरी. पुरानी में भी दो होते हैं, एक रीसेंट हो गई और एक रिमोट हो जाती है. अगर रीसेंट मेमोरी नहीं हो तो उसको एमनीजिया ऑफ फिक्सेशन कहते हैं, विच इज कॉमन इन कॉर्सकोफ. इसमें रीसेंट मेमोरी इज इम्पेयर्ड, whereas remote memory में again there are two kinds, one is explicit and other one is implicit. तो कॉर्सकोफ में यूजुअली एक्सप्लिसिट मेमोरी जो है उसमें डेफिसिट हो जाती है, बट इम्प्लिसिट मेमोरी इज फंक्शनल. ये क्वेश्चन में आया था, सो आई एम टेलिंग यू इम्प्लिसिट मेमोरी इज फंक्शनल बट रिमोट इज ऑल्सो फंक्शनल. बट रिमोट में एक्सप्लिसिट में थोड़ी डेफिसिट होती है, बट रीसेंट मेमोरी इम्पेयर्ड होती है जिसको एमनीशिया ऑफ फिक्सेशन कहते हैं एंड दिस कैन कम इन द एग्जाम्स, सो प्लीज बी केयरफुल. द नेक्स्ट सेट ऑफ सिम्टम्स इज कन्फैबुलेशन. कन्फैबुलेशन तो फेवरेट है एग्जामिनेशन में, टिपिकल ऑफ कॉर्सकोफ सिंड्रोम. इसमें होता क्या है, मेमोरी में गैप्स होती हैं. somebody went from A to B और B से फिर वो कोई जगह गया C and C के बाद कोई जगह गया D and D से वापस गया B. Now there is the person may remember कि he went from A to B and somehow went from D to B as well, but he does not remember the other part. मतलब उसको पता है मैं A से B गया और मैं D से B भी गया, बट अब उसको ये नहीं पता. There is a gap in the memory. He does not know how he went from D to B. तो इसके बदले he can create his own stories कि मैं यहाँ से F, E, F, G गया, H गया, which occurs like a lying. Superficially लगता है कि the person is lying, but it is actually gaps in memories that are seemingly true, and the person utilizes it to fill these memory gaps. तो वो एक अपने से self इन्वेंटेड मेमोरीज होती हैं, उसको कन्फैबुलेशन कहते हैं. इसके साथ लैक ऑफ इंसाइट एंड कंटेंट होती है. कंटेंट इन एनी कॉन्वर्सेशन उसमें कम हो जाती है. एपैथी मतलब इनसेंसिटिविटी हो जाती है. सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ कॉर्सकोफ सिंड्रोम. नाउ व्हाट इज द एरिया? एरिया रिमेन्स सेम, व्हिच इज थैलेमस, mammillary body and cerebral atrophy. तीनों चेंजेस होते हैं, बट these changes here are irreversible. एंड इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन इसमें नहीं होता है. इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन होता किसमें है फिर? अल्कोहल अब्यूज के केसेस में देयर इज अ डिसऑर्डर व्हिच इज कॉल्ड एज मार्चिया फावा बिग्नामी सिंड्रोम. इसमें इंटेलेक्चुअल लॉस भी होता है अपार्ट फ्रॉम द गिवन सिम्टम्स. इसमें इंटेलेक्चुअल लॉस भी होता है, इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन होता है. नाउ ट्रीटमेंट इज IV thiamine फॉर बोथ वर्निकेज एंड कॉर्सकोफ. अबंडेंस में देते हैं, IV में देते हैं. ऑप्थेल्मोप्लेजिया अगर इस टाइप के सिम्टम्स को रिजॉल्व कर जाएंगी. मोस्टली कॉर्सकोफ के एमनेस्टिक डिसऑर्डर में रेजोल्यूशन में प्रॉब्लम होता है. नेक्स्ट इज कीप हाइड्रेटेड विथ वाटर, नॉट विथ अल्कोहल. अल्कोहल रिस्ट्रिक्शन रखना है. न्यूट्रिशन हाई रखनी है. मल्टीविटामिन, फ्रूट्स, सप्लीमेंट्स भी यूज कर सकते हैं. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को बढ़ाना है, कंटेंट बढ़ाना है अपनी डाइट में. एंड द नेक्स्ट इज कांस्टेंट पेशेंट केयर. पेशेंट केयर फुल टाइम होनी चाहिए and to keep an eye on them. Also domain specific learning करानी होगी. domain specific learning ये क्या होती है? इसमें होता है कि it is a known fact
कि many independent specialized knowledge structures होते हैं rather than one cohesive knowledge structure. मैं एक चीज सीखूं और उसको train करूं, then I may acquire that knowledge या to the way the methodology to pursue that activity, उसको domain specific learning कहते हैं. तो वो भी use कर सकते हैं हम Korsakoff psychosis में. And that ends our topic, and we will be taking requests. Kindly comment on our space or mail us on the given ID infokular@gmail.com. पढ़ते रहिए, थोड़ी strategy maintain करिए, बिल्कुल उबना नहीं है. Do not give up, do not cry at night, do not feel disheartened. Step by step, you'll realize by a few months from now, you'll realize how helpful reading thoroughly in this stage of the exam is, how well paid it is. You will be paid off later. Keep putting in your efforts, don't get disheartened, and keep smiling. अच्छे AC में बैठ के घर बैठे आपको सारी कंटेंट मिल रही है, आप पढ़िए, यूटिलाइज करिए, and hopefully you'll be doing a great job every day. Keep smiling, keep reading.